Hello students, greetings of the day. I am Dr. Preeti Nath, Associate Professor, Political Science, Government PG College, Sector 1, Panchkula. And today I am going to deliver a online lecture for you, and it's a video recording. You can check it anytime. It will help you cover your syllabus for this particular topic. The topic that I have covered for you is from the syllabus of MA1 Political Science Semester 1. Paper number is 5. The name of the paper is Social Research. The topic is from first unit of the syllabus of Social Research from Kurukshetra University. So I would like to thank our principal and our director who have given me this opportunity to make a video clipping for my dear students and who cannot come to college due to corona, and who can make, you can also make notes at home. The main focus would be to clear your concept, and the topic I am going to tell you is on one of the approaches of social research. So the one topic that I have covered right now is the Marxian approach of social research. So I will tell you, you can write the spelling. Marxian approach of social research. There are various approaches of social research, and Marxian approach is the traditional approach of social research. It is not a modern approach. So in Hindi I would like to tell you, ये है हमारा सामाजिक अनुसंधान का परंपरागत उपागम है, और उनमें से एक उपागम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मार्क्सियन अप्रोच ऑफ सोशल रिसर्च. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने टॉपिक में लिखा मार्क्सियन अप्रोच. मार्क्सियन मतलब किससे रिलेटेड है ये? जैसे हम गांधी के जो व्यूज हैं उनके बारे में जो व्यूज हैं हम कहते हैं गांधीयन अप्रोच, जो उनकी थिंकिंग है उससे रिलेट करते हैं. तो मार्क्सियन अप्रोच किससे रिलेट हुई? कार्ल मार्क्स. So when I begin with this topic, I would like to tell you 3 interesting quotations given by Marx. One, he said, to each quote unquote, he said, to each according to his ability, to each according to his needs. Another famous quotation is, workers of the world unite. And you all know that if you see the calendar, 1st May is considered as the Workers' Day. So he said, workers of the world unite. And another important quotation given by him is, philosophers have merely interpreted the world. The point, however, is to change it. So I would like to pick up his 3rd quotation for explaining this approach, and I would like to tell you is, I know that some of you have Hindi medium, so I would like to discuss the 3rd quotation given by him. Philosophers have merely interpreted the world. जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने केवल हमारे विश्व का एक विश्लेषण या इंटरप्रिटेशन किया है. The point, however, is to change it. तो लेकिन मुद्दा क्या है कि हमें इस वर्ल्ड में चेंज कैसे लाना है. So when I talk about change and when I talk about Marxian change, I would like to tell you that he was in favor of revolution, and in revolution he was in favor of bloody revolution. And you all know, when I talk about change, first let me discuss the word change with you. When we talk about change, you know that change is the law of nature. Every second there is a change. There is a sociologist who used to say that he had given an example that today I am going to cross a river. I put my foot
in the river. I can feel the waves of the river on my foot. Next time again I have to cross the same river, and I feel the waves of the river have changed. So change is the law of nature, and change is happening everywhere in every sector of society. So I would like to now mention his famous book, Das Kapital. This is his famous book, Das Kapital, and I would like to mention here names of supporters of Marxian approach. Engels is one of them, and Marx had drawn his method. He was attracted to the method. So Hegel's method, what was his method? Dialectics. DIALECTICS, डायलेक्टिक्स. इसे हिंदी में हम कहते हैं द्वंद्ववाद. What is this? Hegel's method of dialectics was related to spiritualism. आत्मा से परमात्मा का मिलन. तो ये हीगल का द्वंद्ववाद था, लेकिन द्वंद्ववाद का मेथड कार्ल मार्क्स ने हीगल से बोरो किया, लेकिन बोरो करने के बाद उन्होंने इसमें मटेरियलिज्म से रिलेट कर दिया. ये हम समझेंगे कैसे किया. इसमें 3 स्टेप्स हैं, वो सेम रहे. थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. ये स्टेप्स है. किसके स्टेप्स हैं? ये चेंज से रिलेटेड स्टेप्स हैं, परिवर्तन से रिलेटेड स्टेप्स हैं. तो हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने इसको कैसे समझाया है, समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है. So when we talk about society, Karl Marx says that he talks about superstructure to explain the changes happening in society. So what is this superstructure? Let's understand it like this. Superstructure. This is important, right? So what all is there in the superstructure? We have the political system, right? Here I am writing superstructure. Please understand, this is superstructure. What all is there is included in superstructure? We have the political system, the religious system, the social system, the educational system, and the cultural system. So what is happening over here in these systems? What is happening is change, because change is the law of nature. Now Karl Marx says that whatever change is happening in political, religious, social, educational and cultural system, which is a part of superstructure, is due to only one factor, and that is the economic system. This is the cause. This is the cause of all changes or any changes which are occurring in these systems. Now I would like to discuss with you what is this economic system. How does Karl Marx define economic system? One, it includes forces of production. And number 2, it includes relations of production. In Hindi, I would like to tell you कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर है हमारे समाज का,
जिसमें जिसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें जो निरंतर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल आर्थिक प्रणाली की ही वजह से हो रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा, आर्थिक प्रणाली की ही वजह से। तो आर्थिक प्रणाली क्या है? इसमें क्या है? उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध। अब क्वेश्चन उठता है कि उत्पादन के साधन क्या है और उत्पादन के संबंध क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें एक पंखा प्रोड्यूस करना है, तो वो एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, तब एक पंखा बनता है। या अगर हम कोई फार्मर हैं और हमें कोई खेती करनी है, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फावड़ा है, पानी है, और जो भी हम मैकेनिकली ट्रैक्टर या कुछ भी यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है। सेकेंड इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? रिलेशन, दो लोगों के बीच संबंध। कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको जॉब दी है, चाहे फैक्ट्री में चाहे इंडस्ट्री में, या आप किसी के लिए खेती करके आप मजदूरी कर रहे हो, और जो उस खेत का जो मालिक है वो कोई और है। तो जिसने आपको जॉब दी है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे खेत में, वो व्यक्ति आपसे ज्यादा रिच है। तो जो रिच है उसको कार्ल मार्क्स ने की टर्मिनोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? बूर्जुआ, BOURGEOISE, राइट। और जो पुअर है उसको कार्ल मार्क्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रोलिटेरियट। याद करने के लिए आप याद रखिएगा, P से प्रोलिटेरियट, P से पुअर, प्रोलिटेरियट, PROLETARIAT, प्रोलिटेरियट। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं, हम ये कह रहे हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि इस सुपर स्ट्रक्चर में जो पार्ट का हिस्सा है, उसमें जितने चेंजेस हो रहे हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम की ही वजह से हो रहे हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो है जिन चीज़ों को यूज करके किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन दो लोगों के बीच का संबंध है, रिच और पुअर। कौन से? रिच और पुअर। ये क्या कहलाती है? वर्ग। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लास। तो ये इसकी थ्योरी है क्लास की। थ्योरी ऑफ क्लास में भी इन्होंने बताया है दो वर्ग हैं, और इनमें क्या चल रहा है? निरंतर क्या चल रहा है? इनमें क्लास वॉर चल रही है। और ये क्लास वॉर क्यों चल रही है, इसका मैं आपको कारण बताने जा रही हूँ। तो हम इस कारण को समझने के लिए कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है सरप्लस वैल्यू, और दूसरी थ्योरी है एलियनेशन। ये समझेंगे, इसको रिलेट करेंगे, इसका संबंध से समझेंगे, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई द क्लास वॉर इज गोइंग ऑन। सो व्हाट हैपेंस इज द bourgeois is continuously exploiting the proletariat। जो रिच है वो लगातार पुअर का शोषण कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसके थ्रू कर रहा है। सरप्लस वैल्यू और एलियनेशन इसके कॉजेज हैं। कैसे कर रहा है? जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है एज अ वर्कर या मजदूर के तौर पे, तो क्या होता है कि जो रिच क्लास है, किसी वर्कर को ज़्यादा तनख्वाह दे रही है, किसी को कम दे रही है। ज़्यादातर इन लोगों से ज़्यादा वर्क आवर्स, ओवर वर्क करा रही है और उनको पैसा नहीं दे रही। तो एलियनेशन का क्या संबंध हुआ इससे? एलियनेशन शब्द में एलियन शब्द इन्वॉल्व है। एलियन हम किसको कहते हैं? जब कोई हमसे अलग होता है, हम उससे आसानी से मिक्सअप नहीं हो पाते, हम उससे जुड़े हुए नहीं होते। अभी हमारे बीच में कोई एलियन आके बैठ जाए तो हमें ये फीलिंग होगी ये कौन है। तो ये फीलिंग इंस्टिल की जा रही है
मजदूरों के मन में। कैसे? वो जाते हैं काम पे क्योंकि उनको काम करना है, इसलिए वो पहुंचते हैं। उनको अपने काम से कोई लगाव नहीं है, अपने काम के प्रति वो एलियनेटेड है, वो काम के प्रति लगाव नहीं है, अपने कोलीग्स के साथ उसको लगाव नहीं है, जो उनका वर्क एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, बिजली पानी जो उनको मिलनी चाहिए नहीं है, तो उनको काम के प्रति भी लगाव नहीं है। और सरप्लस वैल्यू क्या है? तो सरप्लस वैल्यू कौन कमा रहा है? वो बूर्जुआ रिच क्लास कमाए चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का उत्पादन 10 रुपए में हुआ तो वर्कर को केवल 1 रुपया मिल रहा है, बाकी अगर प्रोडक्शन में 2 रुपए लगे तो बाकी 7 रुपए जो है वो बूर्जुआ की पॉकेट में जा रहे हैं। तो लगातार उनका एक आर्थिक शोषण चल रहा है, और आर्थिक शोषण होने की वजह से यही कॉज बन जाता है वर्ग संघर्ष का। इट इज कॉल्ड वर्ग संघर्ष। इंग्लिश में in English we call it class war. So now what will happen? Let us discuss. We have been discussing this point. Again I am trying to remind you that there is a superstructure which constitutes political, religious, social, educational and cultural systems, and all the changes that are occurring in these systems are only due to one system, and that is the economic system. And the economic system comprises forces of production and relations of production. The relations of production, there is bourgeois and the proletariat class. There is a continuous class war going on in between these two, and the reason is surplus value and alienation and economic exploitation. So when we draw a graph, let us draw a graph. If we draw a graph, right, so we see, for example, this is forces of production and this is relations of production, right? So what we see, if we draw a graph taking on account the time factor, we see the forces of production move forward and the relations of production lag behind. This is called cultural lag as defined by Marx. So what do you mean by lag? If I tell you, let's first understand what is lag. आपने देखा होगा, बचपन में रेस लगाते थे, जो बच्चा पीछे रह जाता था हम कहते थे ही लैग्ड बिहाइंड, ये जो पीछे फेल हो जाए ही लैग्ड बिहाइंड। तो ये कल्चरल लैग है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो आगे बढ़ गई, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पीछे रह गई। क्यों रह गई? इसमें लगातार क्या चल रहा है? इसमें लगातार क्लास वॉर चल रही है, ठीक है। नाउ वी विल रिलेट ऑल दिस टू डायलेक्टिक्स। Right? So he has borrowed this method from Hegel, I told you in the beginning, which is thesis, antithesis and synthesis. So what will happen? These are the changes occurring in society, right? This is how the change is occurring in society, and change will not stop to synthesis. Again synthesis will convert to thesis, it will convert to antithesis, this will again convert to synthesis, and the process will go on and on. So what happens when there is a class war going on? One fine day all the proletariat unite. The poor class, what happens is it unites. It unites against whom? It unites against the bourgeois class. And Marx says one who holds economic purse or economic power holds the political key. He says जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होती है उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति आ जाती है। तो आर्थिक शक्ति, जब हम कहते हैं पुअर जितने लोग थे उन्होंने एक विद्रोह किया, उन्होंने किसके खिलाफ किया? बूर्जुआ क्लास के खिलाफ किया, उन्होंने रिच क्लास के खिलाफ किया। कैसे किया? उनके अंदर, ये मार्क्स ने एक शब्द बताया, क्लास कॉन्शियसनेस जागृत हो गई।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग चेतना। किसके मन में जागृत हो गई? पुअर वर्ग के अंदर वर्ग चेतना जागृत हो गई और वो क्या हो गया? क्लास कॉन्शियसनेस जैसे ही जागृत हुई, सारे पुअर लोग प्रोलिटेरियट एक हो गए और उन्होंने किसको हटा दिया? उन्होंने बुर्जुआ वर्ग को हटा दिया। पहले आर्थिक शक्ति किसके पास थी? इनके पास थी। जब इनके पास आर्थिक शक्ति थी तो कैसा राज्य था? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, जिसको हम हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं। तो इधर से इन्होंने जब शक्ति इन्होंने ले ली, पुअर वर्ग ने ले ली, तो क्या बन गया? सोशलिज्म, समाजवाद बन गया। तो हम देख रहे हैं कैसे आर्थिक प्रणाली की वजह से राजनीतिक प्रणाली जो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसमें चेंज आया। और फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब सोशलिज्म आ गया तो उसके बाद कार्ल मार्क्स ने एक कल्पना करी है और वो कहते हैं एक दिन आएगा राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज बन जाएगा, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, एंड दैट चेंज इज कॉल्ड कम्युनिज्म। इसकी मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, COMMUNISM। इसको कम्युनलिज्म मत लिख देना, ठीक है? इट इज कम्युनिज्म, जिसको हम हिंदी में साम्यवाद कहते हैं, ठीक है? तो ये आपकी पूरी थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। और इसको ज्यादातर कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है? इसको मेन क्रिटिसिज्म इसका यही है कि कार्ल मार्क्स ने ज्यादा इम्पोर्टेंस आर्थिक तत्व को दिया है, जबकि रियलिटी ये है कि आज की चेंजेस जितने समाज में हो रहे हैं वो किसी भी तत्व की वजह से हो सकते हैं। तो और फिर भी हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज भी हम कार्ल मार्क्स को, जबकि ये परंपरागत मॉडर्न है, काल्पनिक आधार पर है, ये बातें तो ठीक है, ये हो रही थी वहाँ पर यूरोप में, लेकिन ये जो वर्ग विहीन और समाज और वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज बन जाएगा, ये थोड़ा काल्पनिक लगता है तथ्य, जिसकी वजह से हम मार्क्स को आज याद भी करते हैं और इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो सोशल रिसर्च का ये कार्ल मार्क्स का उपागम, ये मैंने आपको आज समझाया है। आई होप आपको समझ आया। मैं आपको मेन बात बता दूं, जो क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा वो ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मार्क्सियन मॉडल, डिस्कस द मार्क्सियन मॉडल ऑफ सोशल रिसर्च। और छोटे क्वेश्चंस में कभी आप यूजीसी नेट या आईएएस का एग्जाम दें तो आपसे पूछा जा सकता है डायलेक्टिक्स क्या होता है, हीगल का डायलेक्टिक्स कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिक्स से कैसे अलग है ना? और जब आप आंसर लिखोगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो टेक्निकल टर्म्स, जो जार्गन्स हैं, दे हैव बीन गिवन, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए हैं, जैसे ये शब्दों का जिनका मैंने इस्तेमाल किया, कौन कौन से वो शब्द थे? डायलेक्टिक्स है, क्लास वॉर है, बुर्जुआ है, प्रोलिटेरियट है और क्लास कॉन्शियसनेस है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, सरप्लस वैल्यू है, एलियनेशन है और रेवोल्यूशन। देखो जो विद्रोह हुआ वो कैसा था? वो रेवोल्यूशन था। और कैसा रेवोल्यूशन था? ब्लडी रेवोल्यूशन था, ठीक है? ये सारी बातें आपको, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको आंसर में जरूर लिखने हैं। एक अच्छा आंसर बनाने के लिए आप कुछ बुक्स भी स्टडी करिए, एक्स्ट्रा बुक्स, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थैंक यू।